Assalamualaikum class 7. Welcome to your science class and I am your science teacher Miss Midal Zamur. Students, as you know that we were studying chapter number 2, classifying plants and animals. In our previous lecture we started classification of plants, that how plants are divided into different classes or different groups. Before the start of lecture, let me give you a brief preview of previous lecture. As I told you that all plants present on earth are divided into two groups. Non-vascular plants, which don't have any vascular tissue like xylem and phloem for the transport of water and food in their bodies. Examples are mosses and liverworts. Second type of plants are vascular plants, which have vascular tissues like xylem and phloem for the transport of water and food. Vascular plants are further divided into two types: seedless plants, which don't produce seeds like ferns, and seed plants. Seed plants are further divided into flowering and non-flowering plants. Non-flowering plants which don't produce flowers or fruits, they produce cones. Examples are conifers, cycads and ginkgos. And flowering plants are those which produce flowers and fruits. Examples are grasses. In our previous lecture, we discussed about non-vascular plants. Topic of discussion for today is vascular plants. Let's start. Seedless vascular plants do not produce flowers and vascular plants appeared on the earth after non-vascular plants. जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था दैट नॉन वेस्कुलर प्लांट्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स ऑन द अर्थ. ज़मीन पे सबसे पहले जो प्लांट्स अपेयर हुए थे दैट वर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स and vascular plants appear after them. Vascular plants have vascular tissues as their name indicates. They have specific types of tissues which are known as vascular tissues for the transport of water and food throughout the plant body. These tissues are known as xylem and phloem. Xylem is responsible for the transport of water from roots to leaves, and phloem is responsible for the transport of food from leaf to roots. So that's why they can grow much taller than non-vascular plants and are able to live on dry land. वेस्कुलर टिश्यूज़ की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि इनकी बॉडी को प्रॉपरली फूड, मिनरल सॉल्ट्स और वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट्स वाई दे कैन ग्रो मच टॉलर देन नॉन वेस्कुलर प्लांट्स. ठीक है, और दे आर ऑल्सो एबल टू लिव ऑन ड्राई लैंड. वेस्कुलर प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, विदाउट सीड एंड विद सीड्स. विदाउट सीड्स और सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स एज देयर नेम इंडिकेट्स, सीडलेस. क्या होता है कि कोई फ्लावर्स या सीड्स इनके अंदर प्रोड्यूस नहीं होते. सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, इंस्टेड दे प्रोड्यूस स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन. तो इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है? एज यू नो दैट सीड्स प्ले अ वाइटल रोल इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स. सीड्स की मदद से ही न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं. सो अगर इनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते, सो हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? They produce specific type of structures which are known as spores. क्या कहते हैं उनको? Spores. Spores help करते हैं seedless plants की reproduction में. Example हमारे पास है ferns. These are vascular plants without seeds. They have spores that can be found on the underside of their leaves. Ferns example है हमारे पास vascular plants की, seedless plants की. They have spores that can be found on the underside of the leaf. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर ferns की. डिफरेंट टाइप्स हैं. एक है बर्ड्स नेस्ट फर्न, स्टैगन फर्न, ये इसके आपको नज़र आ रहे हैं. लीफ की अंडर साइड पे स्पोर्स नज़र आ रहे हैं. स्पोर्स बेसिकली छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं. इनको ट्रू सीड्स नहीं कहते, ठीक है, बट दे आर सीड लाइक. वी कैन नॉट कॉल देम ट्रू सीड्स. दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन. ये स्कैटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड. और फिर क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर ये गिरते हैं इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, लाइक प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर मॉइस्चर, या जो भी एक प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई जब मिलती है तो दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. सो ये हमने बात की किसकी? वेस्कुलर प्लांट्स विदाउट सीड्स, कि जिनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते. सो हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स. और स्पोर्स कहाँ बनते हैं? अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स. इनके ऊपर कोई फ्रूट, कोई फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस होते. देन सेकेंड टाइप ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? विच प्रोड्यूस सीड्स. सम वेस्कुलर प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन. उनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. वेस्कुलर प्लांट्स विद सीड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ग्रुप्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स.
Okay, now we are talking about those plants which produce seeds, which produce flowers, ठीक है, which produce fruits. So what happens? They are further divided into two groups, यानी कि वो तमाम plants जो vascular हैं, which contain xylem and phloem, and they produce seeds. Further, they are classified into two groups, gymnosperms and angiosperms. Okay students, seeds produce करने वाले तमाम plants भी flowers produce नहीं करते. Okay, क्या होता है? ऑल प्लांट्स विच प्रोड्यूस सीड्स दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स. ज़रूरी नहीं है कि सीडेड प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करें. उसी बेस पर फ्लावर्स प्रोडक्शन या फ्लावर्स प्रोड्यूस करने या ना करने की बेस पर ही सीडेड प्लांट्स को या वेस्कुलर प्लांट्स विद सीड्स को टू फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स. So vascular plants with seeds are further divided into two groups, gymnosperms which are non-flowering यानी कि flowers उनके ऊपर produce नहीं होते, and angiosperms which are flowering plants. Gymnosperms, non-flowering plants. Gymnosperms are vascular plants with leaves, stems, roots and seeds but no flowers. Gymnosperms वो vascular plants होते हैं which have all structures except flowers, like they have leaves, stems, roots and seeds but they don't produce flowers. जिम्नोस्पर्म का नाम क्यों रखा गया जिम्नोस्पर्म? जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्म्स मीन सीड. जिम्नोस्पर्म्स मीन नेकेड सीड. नेकेड सीड मीन्स बिकॉज दे डोंट हैव फ्लावर्स, सो उनके जो सीड्स होते हैं दे आर नॉट इनक्लोज्ड इन द फ्रूट्स अनलाइक दोज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावर्स और फ्रूट्स इनमें प्रोड्यूस नहीं होते, सो इनके जो सीड्स होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स. एग्जाम्पल्स आर कोनिफर्स, साइकेड्स एंड गिंकोस. द सीड्स ऑफ कोनिफर्स और साइकेड्स आर डेवलप्ड इनटू कोन्स. ये आप देख सकते हैं, ये कोनीफर की या साइकिल की कोन है. इनके जो सीड्स होते हैं वो कोन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. दे डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स और फ्रूट्स, इंस्टेड दे प्रोड्यूस कोन्स. अब इनकी जो कोन्स हैं ये रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करती हैं. सेकेंड जो ग्रुप है दैट इज़ एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स. एंजियोस्पर्म्स आर वेस्कुलर प्लांट्स विद लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स. They have flowers and seeds for reproduction. The seeds are enclosed in fruits which protect the seed and help them to disperse. Okay, angiosperms कौन से plants होते हैं? Which have all the structures like leaves, stems, roots. They have flowers and seeds and they also produce fruits. अब इनके जो seeds होते हैं they are covered, they are enclosed inside the fruit. और fruit क्या करता है? इनकी seed को protect करता है harsh environmental conditions से और उनके डिस्पर्सल में हेल्प आउट करता है. डिस्पर्सल मीन्स सीड्स का स्कैटर होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मैनी ऑफ द प्लांट्स यू सी आर फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स आप अपने आसपास देख सकते हैं. द फ्लावर्स ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स आर ब्राइट एंड कलरफुल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन. बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे हैं उनके फ्लावर्स ब्राइट और कलरफुल होते हैं. किस लिए? ताकि इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, जैसे हनी बीज, बटरफ्लाइज, वो उन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड देन दे हेल्प देम फॉर पोलिनेशन. पोलिनेशन का मतलब ये होता है कि जब हनी बीज या बटरफ्लाइज फ्लावर्स के ऊपर बैठती हैं दे कैरी देयर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू एन अदर फ्लावर, और इस तरह से उनकी रिप्रोडक्शन में उन्हें पोलिनेशन में हेल्प आउट मिलती है. पोलिनेशन मतलब कैरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू एन अदर फ्लावर्स. Others may be small, dull and inconspicuous. Thus flowers are pollinated by wind. Flowering plants range from the smallest duckweeds which live in water to giant kapok trees found in tropical rainforest. ये इनकी कुछ examples थी. So that was all about today. Allah Hafiz.